there. ठीक. Chalo. Let's begin. Okay. Awesome. First of all, thank you to each and everyone who is gathered here today on behalf of Supriya and me and Brain to Body Revolution. Thank you so much for making time for yourself and prioritizing you. This is all about you today, about how you can become your ultimate best by one single tool, the most simplest tool that is available out there with that. With that, just let me give a quick introduction about us. I know you all are aware about us, but anybody here new who will join us later on, because this is recorded, just want to tell that we are from Brain to Body Revolution. We are into health and fitness and holistic 360-degree transformation. We call ourselves as transformational architects, because we believe that we are all fixing the symptoms in the world, when actually what needs fixing is what we are within, right? Once you fix what you are inside, once you come to terms with it, everything else becomes sorted. So hence it is brain to body. And I am Soumya. I am a food technologist and a dietitian with new zeal to understanding mind and the power behind the mind and how it affects, doing a lot of research and studying behind it and implementing it as I go read about. With me is my co-founder, beautiful Supriya Naira. She is an engineer by profession, but has been a trained, well seasoned life coach for about 4 years now. She has helped vast majority of people overcome vast number of challenges and be successful. And she herself is a wealth champion. She has lots of stories to tell. If you reach out to her, you'll hear numerous stories of how she has turned her life around. But together we have gone through lots of ups and downs, and through which experience we are here trying to help similar souls find themselves. Nothing makes us happier than seeing a broad smile on your face, telling you know how to live your life and you are very happy in it. Our mission from Brain to Body Revolution is Sarve Jana Sukhino Bhavantu. We want all and everybody to be happy. With that, let me go ahead and share my screen. Continue. Sure. Is my screen visible to everybody? Absolutely, yeah. Clear. All right, let me present it. All right, so here we go. So today's topic is the healing power of breath, because there is something we truly believe in Brain to Body Revolution is, if you can master your breath, you can master your mind. I know many people have said this, many sages, scientists, anybody who will ask you, if you ask your own self, you will be able to say this very line. If I can control my breath, I know I can control my mind. That is very true. But still we are unaware of its its capabilities. उसका कितना क्षमता है, वो क्या कर सकता है अपने लिए, हमको इसकी पूरी जानकारी नहीं है. जानकारी है भी तो हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं. एंड दैट इज working against us. We need to do everything in our hand to make use of all the tools that has been given to us by the nature, by the God, by our body. But we are so lost in whatever is outside that we forget what is happening on the inside. टू एम्फसाइज, इसको एक्सप्लेन करना के लिए बेटर एक स्टोरी है मेरे पास. ये रियल ऐतिहासिक स्टोरी है, हिस्टोरिकल स्टोरी है. जापान में जब दो कम्युनिटी, दो क्लैंस झगड़ने लग गए थे, देयर वाज अ ज़ेन मास्टर. ज़ेन मास्टर वो हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स कहे जाते हैं, जो इतने
काम कूल प्रेजेंट रहते हैं, भले ही उनके सामने अर्थक्विक हो रहा है या युद्ध हो रहा है या दो लोग झगड़ रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। शादी का वातावरण है, फिर भी दे आर नॉट अफेक्टेड। बच्चा पैदा हुआ है, फिर भी दे आर नॉट अफेक्टेड। उनको खुद को कुछ मिला है, फिर भी दे आर नॉट अफेक्टेड। उनको कुछ दर्द हो रहा है, तो भी दे आर नॉट अफेक्टेड। दोज आर कॉल्ड ज़ेन मास्टर्स। उनका नाम था टोकोन सोहो। ठीक है। वो उस मॉन्क को बुलाया गया था बाय वन ऑफ द क्लैन लीडर। ठीक है। हम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लैन ए क्लैन बी बोलेंगे। क्लैन ए की लीडर ने उस जेन मास्टर को बुलाया, बोला कि देख सुन, क्लैन बी के जो सोल्जर्स है वो बहुत सारे हैं, वी आर आउट नंबर्ड एंड आर सोल्जर्स आर इन फियर एंड दे आर लेस इन नंबर्स। वो युद्ध नहीं जीत पाएंगे, हम क्या करें? एंड देन द सोहो द जेन मास्टर ने कहा, the breath has left the battlefield, let us bring it back into the body। क्या बोला कि सोल्जर्स में जो ब्रेथ था वही नहीं है बैटलफील्ड में। अगर वो आ जाए तो युद्ध जय निश्चित है। तो उन्होंने जो भी बचे खुचे सोल्जर्स थे उनको इकट्ठा किया, उनको बिठाया और उन्होंने उनको एक जेन ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई। वो है 4 times inhale, 4 times hold, 4 times exhale and 4 times hold। 10 मिनट की ये एक्टिविटी ensured that they win even though they were outnumbered। क्या हुआ ये 10 मिनट में? 10 मिनट में ये हुआ कि जो उनकी सांसें थी, जो घबराहट में वो भूल गए थे, उनका माइंड बंद हो चुका था, क्योंकि दे वर नॉट प्रेजेंट ऑन द बैटलफील्ड, दे वर प्रेजेंट इन द फियर। दे वर प्रेजेंट इन द फियर दैट ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू लूज माय लाइफ। जिस सांस के लिए ही वो घबरा रहे थे वो ले ही नहीं रहे थे, वो पहले ही मर रहे थे। वो एनिमी ने अटैक ही नहीं किया है, बट उनका सोच ने उनको ऑलरेडी अटैक कर दिया था। बट व्हाट हैपेंड, द जेन मास्टर टुक देम एंड ब्रॉट देम एंड मेड देम कॉन्शियस दैट हे बडी, यू आर अलाइव, यू आर अलाइव बिकॉज यू आर ब्रीदिंग। एंड व्हेन यू ब्रीथ यू कैन कंट्रोल एनीथिंग। आपका कियोस जो है वो क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यू आर कन्वर्टिंग वॉट एवर इज अराउंड यू इनटू द विजन दैट यू वांट टू सी। उनका फियर ट्रांसफॉर्म हुआ, उनको क्लैरिटी मिल गई, फोकस आ गया। आप लोग भी देखो, कितने बार आप फियर में आप रह के आप देखो, आप कुछ भी याद नहीं रहता है। कब किचन में गए, कब लिविंग रूम में आए, ये होश ही नहीं रहता है। व्हेन यू आर इन एंजाइटी, व्हेन यू आर इन फियर कि क्या होने वाला है। सपोज बच्चों का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, उस दिन आप, does anybody of you who is a parent here remember the day of exam result के दिन आपने क्या क्या किया है? आपको क्या याद है ये? You will remember the result का मोमेंट क्या आया था, बट उस पूरा रिजल्ट आने तक का पीछे का जो टाइम है, कैन यू रिमेंबर इट क्लियरली? No. Why? You are moving around in fear. When you are in fear, you are living in future tense or you are living in past tense. You are not in the present. You are not focused on your breath। जो एक चीज आपको यहाँ पे रुका के रह रहा है, वही उसी पे ध्यान नहीं है। उस दिन सेम लाइक सोल्जर्स, दे डिड नॉट विन विद स्ट्रॉट्स, दे वन विद ब्रेथ। आपका सांस है तो बस है, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में ना। They say this is a very famous quote that is floating around everywhere, which is, you may have 1,000 life problems right now. You may have 1,000 life problems right now. But if you have one health problem, भले ही एक छोटा सा, मे बी आपको कोई कुछ अभी मच्छर काट के गया है, आपका पूरा ध्यान वहीं पे आएगा। Am I right? You'll forget for that few seconds that you have 1,000 problems. You will be focused on that one silly thing that it bit you and it is itching you, because that's a situation, that's a problem that you have right now। Am I right? So, and आप वो एहसास आपके बॉडी पर तब आएगा ना, when you are threatened, when you're threatened that you lose your life। And how will you lose your life? What is the last step in losing your life? When you lose your breath, everything can be shut down, but if your सांसें चल रही हैं तो अभी भी जिंदा हो, है ना?
जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सांसें अभी चल रही है तो जिंदा हो तुम, है ना? दैट यू शुड मेक इट योर मंत्रा। सांसें चल रही है तो मैं जिंदा हूं, और मैं जिंदा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट हैपेंड देयर? व्हाट हैपेंड देयर व्हेन दे डिड 4 4 4 4? ऑल्दो जेन मास्टर है, आप लोगों को लगता होगा कि कुछ सिखाया होगा उन्होंने, है ना? हम अभी वो रिसर्च करने के बाद ये पाया गया था, व्हेन यू डू 4 4 4 4, यू आर एक्टिवेटिंग योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो लोग नए हैं, जिन लोगों को ये पता नहीं है, आपके नर्वस सिस्टम जो है, आपका जो मेजॉरिटी का वर्क जो हो रहा है आपके नर्वस सिस्टम से ही हो रहा है। आपका ब्रेन ये हेडक्वार्टर्स है, और यहाँ से जो नीचे है वो उसका बात सुन रहा है। ठीक है, और वो कैसे बात करता है? अपने नर्वस सिस्टम से बात करता है। और ये नर्वस सिस्टम में दो फॉर्मेट्स है, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। दो मोड पे आपका नर्वस सिस्टम चलता है। सिंपैथेटिक क्या है? चलो, उठो, ब्रश करो, डब्बा बनाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, डू दैट, डू दिस, कम ऑन, आई हैव टू गेट दिस वर्क डन, आई हैव टू गेट दैट वर्क डन, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मी, दैट दिस इज sympathetic nervous system. This is your survival system, which is totally making you be in a fight or flight mode. That is your sympathetic, and this is very much needed. दिस इज नीडेड। अगर आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड नहीं है तो आप सुबह उठोगे ही नहीं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नीडेड, बट what is more needed in your life is parasympathetic nervous system. आपका बॉडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम रेस्ट और रिलैक्सेशन स्टेट में रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सो जाओ, आप सो के भी स्ट्रेस्ड रह सकते हो। क्या आपको पता है ये चीज? दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि यू आर एट peace within you. All the systems are running at their optimal best, and they can only run when your this is not running at the speed at which it is used to run. ठीक है, you need to be calm in your head. What is calm? To be okay with whatever is happening around you. हम I read a very beautiful definition of stress. Again, a Zen master ने quote किया था कि what is stress? They said stress is resisting to life. Life हो रहा है, और काम वाली बाई नहीं आ रही है, बॉस चीख रहे हैं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, घर में पानी नहीं आ रहा है, ये लाइफ है। आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो आप स्ट्रेस ले रहे हो। एक्सेप्ट इट। मेड नहीं आई, हाँ मेड नहीं आई, बर्तन आज मेरे को ही धोना पड़ेगा, ओके ठीक है। बच्चे मेरे बात नहीं सुन रहे, ठीक है आज नहीं सुनेंगे, फिर कभी सुनेंगे ही सुनेंगे। बॉस चीख चिल्ला रहे, मे भी उसके घर में कुछ हुआ होगा। नहीं, व्हाट वी डू? बॉस क्यों चिल्ला रहे, मैंने तो काम किया था, यू उसका घर का झगड़ा अभी आपके बॉडी के अंदर है, बिकॉज यू आर रिएक्टिंग टू दैट, यू आर नॉट ओके विद इट, यू टुक द स्ट्रेस। ओ वो स्ट्रेस करके आएगा और मेरा फाइल पे साइन नहीं पड़ेगा तो मेरा काम अटका है, अटकने दो, उनका भी जिम्मेदारी है ना। Resisting what is makes your stress go higher. So what happened when you do these deep breathing, or when you become conscious of your breath? What happens? Your cortisol level, your stress level goes down significantly. Stress नहीं रह सकता है relaxed state में. Those are opposites. Your parasympathetic and sympathetic nervous system are like switch buttons. ठीक है, कोई एक ही चीज ऑन हो सकता है एक टाइम पे। जैसे कि हमने बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा ना कि फ्रिज में जो लाइट बल्ब होता है ना, हैव यू ट्राइड दैट व्हेन वी वर किड? वी क्लोज इट जस्ट इनफ टू सी इट विल स्टे ऑन और व्हाट, लाइक यू नो, वी नो व्हेन वी क्लोज इट स्विचेस ऑफ, व्हेन वी ओपन इट स्विचेस ऑन। पहले वाले, अभी के जेंजी लोग अगर है तो यहाँ पे सॉरी, यू गाइस हैव मिस्ड सम फन डे, फन टाइम। बट when you literally, we have done this, I have done it million, like, oh, I see if it can stay on even when I close the door, but होता नहीं है। होता है? नहीं होता है।
Simply like that. Your parasympathetic and sympathetic are like that. They can't be in between. They will go up, down, up, down, up, down. And if you, अभी क्या हुआ है, आपका बटन पूरा सिंपैथेटिक पे दब के, majority of us here, I'm not going to stereotype anything, majority of the people in the world, बटन ऊपर की तरफ सिंपैथेटिक पे दब के अटक गया है वहां पे. वी आर स्टक विथ सिंपैथेटिक. हमारा पैरासिम्पैथेटिक होता ही नहीं है. बट यू कैन स्विच ऑन योर पैरासिम्पैथेटिक विथ योर ब्रेथ. देयर आर सो मेनी टेक्निक्स आउट देयर. इससे और भी एक चेंज होता है, आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होता है, यानी कि आपका हार्ट हमेशा एक ही टाइप जैसे नहीं बजता है. हैव यू नोटिस? अगर मैं बोलूं, हे सांप आ गया, देखो सडनली आपका हार्ट धक किया. अभी मैं बोलूं, कितना अच्छा समुंदर है यहाँ पे, see, suddenly your heart calms down. Your heart rate is different right now and my heart rate is different right now. Like mine is like going da 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 because I'm talking continuously and my mind is trying to come up with new things. But yours is in rest and relaxation. Because you're taking in information. वही मैं अभी फटाक से बोलूं, नीचे देखो. Suddenly when you do that action, your heart rate changes. This is heart rate variability. और जितना ये versatile है, जितना ये फ्लक्चुएट कर सकता है फ्रॉम गोइंग फ्रॉम काम टू केओस, उतना आपका इमोशनल रेजिलियंस बढ़ता है. यानी कि कोई लोग हैं आपके लाइफ में जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, उनको ध्यान में लाओ. आपको उनके जैसे बनना है तो आपको अपने ब्रेथ पे काम करना है. सिर्फ इतना ही है. बिकॉज दोज पीपल, उनका हार्ट बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकता है. ठीक है. और ये जो टेक्निक्स है, ये जो ब्रीदिंग पे डीप ब्रीदिंग करना, ये जो कामनेस आना ब्रीद में, ये कहाँ पे ज्यादा एम्प्लॉय किए जाते हैं? यू विल बी सरप्राइज्ड. इट इज नॉट एम्प्लॉयड मेनली बाय योर सेंट्स और zen मास्टर. कैन यू रीड इट हियर? इट इज नेवी सील्स, सर्जन, इलाइट एथलीट्स, बूस्टिंग परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर. जो लोग हाई प्रेशर में रहते हैं, हमारा प्रेशर कुछ भी नहीं है उनके सामने. Do you think you have a pressure of a person sitting as a army head? आपके लाइफ में इतना प्रेशर है क्या कि वो आर्मी हेड जो प्रेशर में रहता है उतना है? जो पर्सन ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है, उतना प्रेशर है आपके लाइफ में, उतना स्ट्रेस है आपके लाइफ में? आस्क योरसेल्फ. थोड़ा की क्या यस. अगर नहीं आप यार, है तो आपको इस उस यू हैव टू 100x डू दिस ब्रेथ वर्क. बिकॉज जो ये सब है ना, नेवी सील्स है, सर्जन्स है, एलाइट एथलीट्स है, अगर हम इनका हार्ट रेट चेक करेंगे, व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, व्हेन दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब, their heart rate is actually low. Their heart rate is actually lower than what your heart rate is right now. वो क्यों? बिकॉज उनका सांसें बहुत गहरी लंबी होती हैं. यू थिंक वो करके शूट करते हैं? नहीं. हैव यू सीन इन इवन इन मूवीज व्हेन दे आर एमिंग, you see everybody goes silent and that person is not even almost close to not breathing. Have you seen that? And then he shoots. Only then you can shoot. If you want to live long like a tortoise, you know how, what is the breath, the number of breath the tortoise takes? Hardly 2 to 3 times in a minute. And we are here taking 11 to 12 times, if I'm not wrong. I have to fact check that. I had heard it somewhere. So please, एक टूल है जो भगवान ने हाथों में दिया था, वो है ब्रेथ. उस पे हम काम करना है. जस्ट 2 minutes ऑफ स्लो डीप ब्रीदिंग कैन रिड्यूस एंजाइटी अप टू 70%. जो लोग एंशियस हैं यहाँ पे, जो लोग बोलते हैं मेरे को बहुत एंजाइटी होती है यार, मेरे को बहुत एंजाइटी होती है, ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, नहीं मेरे को एंजाइटी होती है, आपका एक ही सोल्यूशन है, डीप ब्रीदिंग. जितना आप ये कर पाओगे उतना आप आराम रहोगे. देखो लाइफ में क्या करना है आपको? आपको 2 चीजों पे काम करना है, आपके ब्रेन पे, आपके दिल पे. एम आई राइट? राइट. ब्रेन में माइंड को कंट्रोल करना है, दिल पे आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है. बट कैन यू रियली कंट्रोल दीज टू? नो. राइट. बट व्हाट गवर्न्स दीज टू? योर लंग्स.
आपके सांस से कंट्रोल करती है, राइट? सांस चल रहे हैं तो वो दोनों चलेंगे ना। इनफैक्ट योर हार्ट, the one organ that is not actually dependent on the brain, is heavily dependent on the heart, on the lungs. ब्रेन को नहीं कंट्रोल करोगे, माइंड आई मीन हार्ट को नहीं कंट्रोल कर पाओगे, बट एटलीस्ट ब्रेथ को कंट्रोल कर पाओगे आप, बिकॉज इट्स बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। एम आई राइट? जब वो चल रहा है अपने आप से चलने दो, जब बट आप जब कंट्रोल कर सकते हो, क्यों नहीं करना है? इफ यू नो टू रेगुलेट योर लंग्स, हम ना बहुत, क्या बोलते हैं, वी एज अ ह्यूमंस, वी हैव टेकन आवर लाइफ फार टू मच फॉर ग्रांटेड। ठीक है, वाई आई एम टेलिंग यू, वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग टू इट्स फुल कैपेसिटी, एनीथिंग। ब्रेन दिया है भगवान ने 100%, यूज कितना कर रहे हैं? सिर्फ 5% उसमें से। लंग का कैपेसिटी दिया है, इट कैन स्ट्रेच अप टू 2 लीटर्स, और हम कितना ml का ब्रीदिंग करते हैं? 200-300 ml की ब्रीदिंग करते हैं। हार्ट का कैपेसिटी कितना है? इट कैन स्ट्रेच अप टू 50 मीटर्स, 50 मीटर्स उसका स्ट्रेंथ है। when you feel love, it can stretch beyond that. हम वो यूज ही नहीं कर रहे किसी भी चीज को, वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग टू इट्स फुल कैपेसिटी, वी आर यूजिंग वन सिस्टम टू इट्स फुल कैपेसिटी एंड वी आर अब्यूजिंग, एंड दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। वो सिर्फ वो एक ही चीज है जिसको हमने पूरा इस्तेमाल कर चुके हैं, बट वो भी we are not doing it 100% right to it also. So guys, if you were waiting for a wake up call, we want this to be your wake up call today. Please wake up and take control of your life, take control of your breath, and see how your brain and your body will change 100%. 100%. Right? Because when you breathe, you're getting more oxygen, your heart will pump more oxygen to your cells are more active, your brain is healthy, if your brain is healthy, your heart is healthy, your lung, can you see that circle goes on and on? कितना easy की हमको दिया था भगवान, और हम, what happens when you don't breathe right? Anxiety, sleep issues, brain fog, chronic fatigue. How many of you here? Don't raise your hands. Be honest with yourself at least. 8 घंटे सोने के बाद भी आपको सुस्ती रहती है, 7 घंटे भी बार बार सोने का मन करता है। इफ यू आर समवन लाइक दैट, आप अपने लिए ऑनेस्ट रहो। इफ यू फील लाइक दैट, इफ यू आर दैट पर्सन, नो दैट योर ब्रीदिंग इज शैलो। माउथ ब्रीदिंग जो हम करते हैं, जो भी लोग कराटे लेते हैं, प्लीज दिस इज फॉर यू। कैन यू रीड दिस हियर? इट इंक्रीजेस एंजाइटी रिस्क बाय 68%। जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी 2021, रिसेंट रिसर्च स्टडी है ये। माउथ ब्रीदिंग कराटे जो लेते हैं, और कराटे कौन लेते हैं? People who have overweight or obese, or people who have hypertension. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा ओल्ड एज में आ जाता है, बट अगर आप 30s 40s में हो और आप कराटे ले रहे हो, इट इज अ सीरियस वेकअप कॉल फॉर यू गाइस। ओके, यू नीड टू वर्क ऑन योर ब्रेथ, because if you start deep breathing, automatically everything, if you're not anxious, your obesity, your obese, everything will go down, your hypertension will go down. Hypertension is the most easiest disease or easiest symptom that we can reverse. Okay, एंड व्हाट डज दिस ब्रेथ वर्क? हमारे पूर्वजों ने हमको सब दे के गए थे, लाइक प्राणायाम दिया था, कपालभाति दिया था, सब दे के गए थे, और हमने क्या बोला कि ये लोग क्या बकवास करते हैं, क्या बैठ के सांस लो। अभी वही चीज वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहा है, ब्रेथ वर्क। बहुत सारे अजीब अजीब गरीब नाम दे के वो भेज रहे हैं, और हम उसको बहुत टाइटली हक कर रहे हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर, and I'm going to tell Didi, if we had put pranayama session today,
half we would not have much people, to be honest, है ना? बिकॉज हमारा चीज हमको घर की मुर्गी दाल के बराबर है ना, वैसे लगता है. बट नो गाइज, आवर रूट्स आर सॉलिड, अवर फाउंडेशन इज सॉलिड. हमारे पूर्वजों ने ये नहीं कहा कि बैठ के वैसे ही करो. लाइक फॉर एग्जाम्पल प्राणायाम, डोंट, इट्स नॉट लाइक सुबह उठ के सूर्योदय पहले से ही करो, नहीं, इट्स अ टूल. मीटिंग से पहले जा रहे हो, घबराहट हो रही है, डू राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट करके जाओ, यू विल क्रैक दैट मीटिंग. व्हाई? इट अगेन स्टेबलाइजेस यू. वी नीड टू नो द टेक्निक्स एंड वी नीड टू अपनाओ उसको, मेक योर ओन एंड अप्लाई इन योर लाइफ. जो भी आप सीखते हो, कहीं पे भी कुछ भी सीखते हो, प्लीज अपने लाइफ में देखो आप ये कहाँ पे फिट करवा सकते हो. एप्लीकेशन होना चाहिए लाइफ में. एप्लीकेशन होता है तभी जाके जो आपने ज्ञान लिया है ना, उसका 100% आपका वैल्यू मिलेगा. कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, जो भी आप कर रहे हो कहीं पे भी कुछ भी, इट डजंट गो फॉर वेस्ट. एंड टुडेज ब्रेथ वर्क व्हेन यू लर्न, प्लीज मेक इट योर ओन एंड अप्लाई इन योर लाइफ. Will help you overcome your anxiety, your panic, your trauma. अगर ट्रॉमा हुआ है, कुछ घटना हुई है पास्ट में, वो ओवरटेक करने हेल्प करता है. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस post traumatic stress syndrome, sorry, that's a bit of a tongue twister there. ये क्या है? अगर कुछ बुरा हो चुका है लाइफ में, आपको डर है कि वो बार बार होगा. सपोज यू अंडरवेंट अ सर्जरी, सपोज यू अंडरवेंट वॉर, सपोज यू अंडरवेंट फेमन, ड्राउट, जो भी है वो आप ओवरकम कर सकते हो. पीसीओडी, पीसीओएस, तो ऑलमोस्ट 9 out of 10 वुमेन suffer from PCOD and PCOS. Helps in hormonal balance. फटीग हट जाएगा, एडिक्शंस हट जाएंगे, डिप्रेशन हट जाएगा, सब कुछ आपके ब्रेथ में है. क्यों? मैंने समझा है. ब्रेथ, योर लंग्स कंट्रोल योर ब्रेन एंड योर हार्ट, हो गया. If you needed any more simplification of your life, there is not. It comes down to breath. Breath work boosts serotonin by 25% in 20 minutes. सेरोटोनिन क्या है? फील गुड, आपको फील गुड करवाता है. अच्छा, चाय पीने पे जो मजा आता है, सेरोटोनिन. बारिश देखने पे जो मजा आता है, सेरोटोनिन. कोई आके आपको ये चॉकलेट दिया या कुछ अच्छा बोला आपके बारे में, सेरोटोनिन. जब आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हो, क्यों दूसरों के ऊपर डिपेंड होना है? एंड इन विद इन 20 minutes 25%. जस्ट इमेजिन डूइंग इट एवरी डे. So here we are not going to treat your symptoms. We are not here to treat your symptoms at Brain to Body. We deal with something that is deep within you. Okay. And that is why one of our tools is breath work. And today we thought we will not gatekeep such knowledge, and we will tell this and share it to the world as much as possible. And we encourage you, when you learn it, to pass it on. There is nothing more better than passing on the knowledge and empowering other souls. I'm telling you, when somebody else comes to you and says, that day you said that line, I thought about it and I did this action and I won this, you will be on top of the world. You will be under, and no amount of monetary compensation or any gifts or any materialistic things can match to it. Ask us. And we are living like that every day. We get no joy in keeping this to ourselves. That's why we have opened everything to you, and we are welcoming each and every one of you who is passionate about transforming your life, about saying, I want to know more about this life and I want to master it, I want to kill it, I want to rock it, I want to be on top of the world. You can come to us, because we are learning continuously and we are bringing new things and we are enriching our life, and we are more than excited to enrich your life with the same. And we are happy to learn something from you, something more than what we have learned. If you could give it to us, we would be open and would be accepting you all. With that, let me tell you very loud, very clear, सब लोग अपना कान, आंख, दिल, दिमाग सब खोल के सुन लो. You are not anxious. You are not lazy. And you are definitely not broken.
आप में कुछ खराबी नहीं है, आप में कुछ गलत नहीं है, यू आर नॉट एट फॉल्ट, यू आर नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ। बस आपको नहीं समझ में आया, आपको अंडर फेड किया था, आप अंडर ब्रेथ किए थे, आप अंडर चार्ज हुए हो और आप अंडर सपोर्टेड हो। बस इतना ही है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर फिक्सेबल। It is coming from me as a person who identified herself as anxious person, as a short tempered person, as a person who is lazy, who is broken, who needs love from others to heal. I had all the limiting beliefs that you all have right now, or you had. मैं वहां से आई हूं, एंड मेरे को कोई डाउट नहीं है, just like my guru says, even I will say it with proud voice, that if I could change my life 360-degree, each and everybody of you here can change it, and you can be on top of the world, and you could be the same person who is talking here like me. You could be talking to 50,000, 60,000, 1 lakh, 2 lakh people and changing their life. And this is not just breath, ये आप हो, ये आपका टूल है, और ये ही दरवाजा है जो आपको अपना घर लेके जाएगा। और घर कहाँ है? ऊपर बचाना है, उसके साथ मिलना है जिसने हमको बनाया है। दिस होल लाइफ इज जस्ट दैट। द सूनर यू आर ऑन दैट पाथ, you will see how beautiful it is. With that, handing over to my co-founder, my precious partner, my my partner in crime, in a beautiful crime, Supriya, to take over and lead us through our breath work for which you all are here. Please make use of every single minute, second you are here. Remember everything, document everything, and let your cells come live, and let go of everything that you're holding and give it your 120% here. Commit to it right now. Say to it that whatever Supriya says, I will do it. Whatever she says me to say, I will say it. Whatever she says me to push out of me, I will push it out. If she asks me to hold my breath, I will hold my breath. If she asks me to inhale deeply, I will inhale. Whatever she says, if she says me to die right now, I will die right now. Commit to that and do this breath work. And if you are not changed person by the end of this 45 minutes, you contact us and we will do something for you more. With that, thank you so much. Supriya Deep, you can take over. Thank you so much, Soumya. That was so insightful. I was just wondering that how could you manage all that and give so much, spread out everything that you know. Thank you so much for doing that. And I'm sure that everyone has got a now we have got a view that how can we do that, how our breath actually works. So guys, thank you so much for being here with us. तो अभी हम लोग अपने आप से बात करेंगे. We are not going to tell you anything different that you do not know. आप सभी को पता है जो हम करने वाले हैं. ब्रीदिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग दैट वी आर ब्रॉर्न विद. हम सभी को सांसें लेना आता है, हम लोग सब नेचुरली सांस लेते हैं. बच्चा जब अपने माँ के पेट से बाहर आता है तभी से अब सांस लेना शुरू कर देता है. उसको किसी ने सिखाया नहीं है, उसको आता ही है सांस लेना. जब हम लोग पैदा होते थे तो परमात्मा ने हमें सिखाकर भेजा ही है कि हम लोग ताकि स्ट्रेस्ड ना रहें, हम लोग डी स्ट्रेस्ड रहें, हम अपनी ग्रोथ कर पाए, हम अपनी एनर्जीज को हील कर पाए. हमारे बॉडी को पूरी तरह से परिपक्व कर कर भेजा गया है परमात्मा द्वारा कि हम खुद को हील कर सकें. वो कैपेबिलिटी अपनी जिंदगी की चाबी ताकि हम अपने हाथों में रखें. इस कारण से हमें जन्म दिया गया है. बहुत ही मुश्किल से ये मनुष्य योनि मिलती है. सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी सांसों पर कंट्रोल रख सकता है. जैसे सौम्या बोल रही थी, प्राणायाम. प्राणायाम का मतलब है प्राणों का आयाम. प्राण यानी लाइफ, आयाम मानी ब्रॉडन इट, expands your life. So pranayam is the technique by which you can expand your life. और प्राणायाम का मतलब क्या है? आपका आपके सांसों के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना, आपका आपकी सांसों के साथ समन्वय होना, सिम्फनी होना. If you know this art of breathing properly and if you know the art of controlling your breath, you can have control over your entire life. Your breath is one thing which is connecting your body with your mind. है ना? सांसों के बिना आपका माइंड कुछ नहीं है और सांसों के बिना आपका बॉडी कुछ नहीं है.
If you are breathing, that means you are alive. Without your breath, you are nothing but a corpse. एक लाश है हम लोग breath लेने के बजाय. Breath के बिना हम लोग बस एक लाश बन जाएंगे. So, जो हमारी फंडामेंटल चीज है जिसके साथ हम लोग पैदा हुए थे, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप अपने शारीरिक और मानसिक जितनी भी चीजें हैं उनको अपने सांसों पे कंट्रोल करके ठीक कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो, तो क्या आप मानोगे इस बात को? आई एम श्योर हम लोग जब सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस बात को समझते हैं कि सांस हमारे लिए कितने जरूरी हैं, तभी आप लोगों ने अपना समय, कीमती समय हम लोगों को दे रहे हैं, हम ले सुन रहे हैं, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो ये करना कैसे है, इसकी टेक्निक एक्चुअली क्या होती है? सांसें एक ऐसा एक्शन है, वॉलेंट्री एक्शन भी है, इनवॉलेंट्री एक्शन भी है। वॉलेंट्री का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से भी सांसें ले सकते हो, और आप अनजाने में, अब मैं बात कर रही हूं, मैं सांस ले रही हूं, उसको मुझे कुछ मॉनिटर नहीं करना पड़ रहा है कि मैं कितनी सांसें ले रही हूं, कितनी छोड़ रही हूं, राइट? लेकिन एक समय अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप डीप ब्रीथ करो, तब मैं डीप ब्रीथ करूंगी, क्योंकि वो वॉलेंट्री एक्शन है। वो वाला एक्शन हमारा वॉलेंटरी एक्शन है, यानी कि जानबूझकर हम अपने आप में सचेत मन से हम उसको सांस ले रहे हैं। और जब अब इनवॉलेंटरी एक्शन का मतलब होता है कि हम अनजाने में, हम अपने आप, बॉडी का प्रोसेस चल रहा है, हमारी सांसें चल रही है, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी किडनीज अपना काम कर रही है, हमारा ब्रेन अपना काम कर रहा है, तो वो इनवॉलेंटरी एक्शन होता है, परमात्मा उसको अपने आप चलाता है। लेकिन सिर्फ एक ये चीज है, सांस है, जिसको हम वॉलेंट्रली तरीके से भी चला सकते हैं। और अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम अपने सांसों पे कंट्रोल रख सकते हैं, तो हमें बिल्कुल इस पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे लाइफ में जो स्ट्रेस होता है वो छोटे से बच्चे को नहीं होता, वो तो आराम से उठते ही, मैं अभी रिसेंटली मैं बुआ बनी हूं, तो मैं अपने जो भांजा है उसको देख रही थी, जब वो सो रहा था ना, तब मुझे इतनी हंसी आ रही थी उसको देखकर, उसका पेट ना ऐसे 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 कर रहा था, मैं अपनी भाभी को बोल रही थी, मैंने कहा देखो कपालभाति कर रहा है ये। इट्स एक्चुअली दैट, छोटा सा बच्चा, उसको कोई प्राणायाम सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, परमात्मा ने उसको सिखाकर ही भेजा है। लेकिन हम लोग स्ट्रेस आने के, बोझ आने के कारण जो है, हम लोग इस टेक्निक को भूल गए हैं, इसीलिए किसी और को बताना पड़ता है हमें इस टेक्निक को, जो कि हमारे को परमानेंटली परमात्मा ने भेज कर, पढ़ा कर लिखा कर ही भेजा हुआ है, राइट? सो आज हम उसी चीज पे फोकस करेंगे कि हम अपनी सांसों को कॉन्शियसली कैसे देख सकते हैं, कैसे हमने अपनी सांसों को लेना है, सांसों के ऊपर कैसे करके कंट्रोल करें कि हमारे जो परेशानियां हैं, हमारे जो स्ट्रेस के बवंडर हमारे दिमाग के अंदर जो बने हुए हैं, जिसके कारण हमारे कामों में रुकावटें आ रही हैं, हमारी सेहत शायद अच्छी नहीं है, पूरी तरह से हम अपनी सेहत को एंजॉय नहीं कर पा रहे, उन सभी का निवारण आज हमारा होगा, इस बात को मैं आपको अश्योर करती हूँ। क्योंकि आप जब अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीखोगे, अपने बॉडी के डीपेस्ट एंड डार्केस्ट एरिया में भी ऑक्सीजन को भरपूर मात्रा में भेजोगे, तो आपका बॉडी कंप्लीटली हील होगा। और जन्मों जन्मांतरों से जो हम लोग ब्लॉक्स को लेके घूम रहे हैं, जिस डर को लेके घूम रहे हैं, जिस तरह की परेशानी और फियर को लेके घूम रहे हैं, वो आप उनको डिमिनिश, उनको खत्म होते हुआ नजर आएगा आपको। सो गाइस, विद दिस, जस्ट आप लोग अपनी अपनी जगह में कंफर्टेबली बैठे। थैंक यू कि आपने इस बात के लिए यहाँ पर आए कि हम अपने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समय, इस इंपॉर्टेंट टाइम, इस इंपॉर्टेंट प्रक्रिया को देंगे, उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होएगा। ये आपने अपने आप को इंटेंशन सेट करना है कि अगर मैं ये 1 घंटा यहाँ पर दे रहा हूं या दे रही हूं, इसका मुझे पूरा लाभ लेना है, क्योंकि आज के समय में समय सबसे ज्यादा कीमती है, पैसा उससे भी ज्यादा कीमती है समय। तो आपके इस बहुमूल्य समय का पूर्ण तरीके से प्रयोग करें, और बिल्कुल आराम से अपनी अपनी जगह पर, अगर आप बैठे हुए हैं तो सीधे बैठिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। इसका मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये करोगे, जब आप अंदर से आपके ये ब्रेथ वर्क करके आपके लाइफ में ब्रेक थ्रूज आएंगे। ब्रेक थ्रू का मतलब है कि बड़ी से बड़ी विक्ट्री आपके लाइफ में आएगी, क्योंकि आपका अपनी सांसों पर कंट्रोल हो जाएगा।
वो कैसे होगा उसको बस हमें अभी एक्सपीरियंस करना है, उसका बस हम लोगों को पूरी तरह से एक्सपीरियंस जब कर लेंगे, आंसर आपके पास होगा। उसका आंसर हम लोगों को, मुझे या सौम्या को बोलने की देने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद उसको एक्सपीरियंस करोगे, बिकॉज दिस इज एक्सपीरियंशियल। इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इट कैन नॉट बी टोल्ड इन वर्ड्स। या सो अगर आप लेटे हुए हैं तो प्लीज सीधे लेट जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए, करवट में नहीं लेटना अगर लेटे हो। अगर आप बैठे हुए हो तो प्लीज स्ट्रेट बैठिए। बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपने शरीर को ढीला छोड़कर अपने माइंड को पूरी तरह से कट कर दीजिए। पास्ट के बारे में नहीं सोचना, कल क्या हो गया। अभी 6:43 हो रहे हैं, तो 6:42 तक क्या बात हुई है उसको भूल जाइए। मुझे पता है कि आप सबको बहुत सारी चीजों का पता है, लेकिन आज हम लोग अनलर्न करेंगे उन चीजों को जो हमें पता है। हम बिल्कुल बच्चे बनकर, छोटा सा बच्चा बनकर जिसको कुछ नहीं पता है, वैसा बच्चा बनकर हम चीजों को समझेंगे और चीजों को समझकर उसको गाइडेंस के हिसाब से अप्लाई करेंगे। सो या I'll just increase this volume just a moment. हम लोग अब अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपनी आंखों को कस के नहीं बंद करना, बहुत आराम से अपनी आंखों को बंद करें। अब आप एक मूक दर्शक बन जाइए। अपने सांसों का आदान प्रदान सिर्फ उसको ऑब्जर्व कीजिए। दो सेकंड लगाइए। अपनी आती हुई सांसों को अंदर आराम से आने दीजिए। अंदर लेती हुई सांस को महसूस करिए, उसकी ठंडक को। फील द coolness in the air that you are breathing. And while exhaling, feel the raised temperature of the air. Now, we will take 3 deep breaths. अगर इस दौरान आपके मन में कोई भी विचार आता है, तो उस विचार के साथ पुष्टि नहीं करनी है हमने। अपने दिमाग को बस खींच के वापस गाइडेंस की तरफ लेके आना है कि हमें क्या गाइडेंस मिल रही है, हमें क्या बोला जा रहा है। अब हम अपने आप को अपने पास्ट और अपने फ्यूचर से डिस्कनेक्ट करेंगे।
आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, अपने रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला हिस्सा, बिल्कुल बॉटम, आपका टेल बोन, जहां आपका टेल बोन है, जहां एनिमल्स की पूंछ होती है, बिल्कुल उस जगह से अपनी मन की आंखों से देखिए कि सहस्रों जड़ें वहां से निकल रही हैं. See numerous roots emanating from the tailbone area and going deep into Mother Earth. जिस तरह एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है और सेफ महसूस करता है, बिल्कुल उसी तरह हमने धरती माता की गोदी में बैठकर आज अपने आप को अपनी सांसों से जोड़ना है. तो अपने आप को अश्योर कीजिए, बोलिए अपने आप को कि आई एम सेफ, आई एम सिक्योर्ड, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं. अब आप अपने दिल के ऊपर हाथ रखिए, अपने हार्ट एरिया पे अपना राइट हैंड रखिए, आपका जो भी एक्टिव हैंड है, और अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए. आपका बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड, प्लीज कीप योर राइट हैंड over your heart, or the active hand over your heart, and the less active hand over your belly. क्रिस क्रॉस कीजिए इनको. और अब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का छोटा सा साइकिल चलाएंगे. जब मैं इनहेल बोलूंगी तब आप नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे. एक्सहेलेशन के समय आपकी सांसें मुंह से बाहर आएंगी, और जैसे ही आपकी सांसें मुंह से बाहर आती हैं, आप ये इमेजिन कीजिए कि आपका फियर, एंगर निकल के आपके शरीर से अलग हो रहा है. So inhale, पेट आपका बाहर की तरफ जाएगा जब आप इनहेल करोगे. एक्सहेल, जैसे फूंक मार रहे हो वैसे आप एक्सहेल कर सकते हो. और एक्सहेल करने के साथ साथ आपका पेट अंदर की तरफ आएगा. तो अपने पेट और छाती को हिलता हुआ महसूस कीजिए. सांसों के साथ उसका समन्वय बिठाइए. अगर योद्धा भी इस चीज को इतने आराम से करते हैं तो हम बहुत आसानी से कर भी सकते हैं. Once again, inhale and exhale. Inhale. Exhale.
exhale. अब आप एक ऑब्जर्वर बनिए, अपनी आती जाती सांस को 2 सेकंड तक देखिए मन की आंखों से। आंखों से, अंदर की आंखों से जब आप अपनी सांसों का परीक्षण निरीक्षण करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे एक गेट कीपर की तरह जो सबको आने देता है और जाने देता है बिना कोई आइडेंटिटी कार्ड चेक करे। Just allow your body to relax completely and say yourself, अपने आप को बोलें, I am safe. ये स्पेस आप ही के लिए बना हुआ है। You are not here to fix anything. आपने कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ एक मूक दर्शक हो। आपको सिर्फ अपनी सांसों का पता है, ना ही आपका बॉडी एग्जिस्ट करता है, ना ही आपका कोई माइंड है। Just feel your breath and be present right here. Breathe very softly now. Inhale deeply, as deep as you can. And now exhale very softly, but even more slow. सांसें जब बाहर डालेंगे, बाहर की तरफ सांसों में समय हमने ज्यादा लेना है, क्योंकि हमने अपने अंदर से सारे विकार हटाने हैं, सारी परेशानियों को बाय बाय करना है। तो एक्सेल बहुत धीरे धीरे अपने माउथ से करने की कोशिश करें। अब हम थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। अब हम इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से 4 बार इनहेल करेंगे, 4 काउंट्स तक अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे, 6 काउंट में अपने ब्रेथ को रिलीज करेंगे और फिर 4 काउंट तक अपने ब्रेथ को वापस से होल्ड करेंगे। तो मैं आपको जब ही इनहेल बोलूंगी आपने इनहेल करना है, होल्ड बोलूंगी तो आपने रोकना है अपनी सांस को, और जैसे ही मैं एक्सेल बोलती हूँ आपने अपनी सांसों को धीरे धीरे से मुंह से, ध्यान रहिए मुंह से सांस को निकालना है। अपने नाक का इस्तेमाल अभी नहीं करना हमने, उसका भी समय आएगा, पर फिलहाल आपने हवा को अपने मुंह से निकालना है और कोशिश कीजिए साउंड के साथ रिलीज करें अपनी हवा को, जैसे कि आपके कानों में मेरी आवाज जा रही है तो आप सुने। Just imitate me without thinking much.
because you do not have a brain right now. You just have your breath, and you will be working on your breath. Just this is your task right now. So inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Just squeeze your tummy. एक्सेल करते समय अपने पेट को बिल्कुल सिकोड़ लीजिए. जैसे ही इनहेल करते हैं अपने पेट को बाहर आने दीजिए. इनहेल, होल्ड, एक्सेल. इनहेल, होल्ड, exhale. Now just relax. Normalize your breath. अपने सांसों को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लीजिए. बट ये ध्यान रहे कि सांसें अंदर लेते समय आपका पेट बाहर की तरफ आए और सांस छोड़ते समय आपका पेट अंदर की तरफ जाए. सिर्फ और सिर्फ इसी बात का नाम है ब्रेथ वर्क. इसी चीज का हमने ध्यान रखना है अभी. सांस अंदर, इनहेल, सांस बाहर, एक्सेल. रिलैक्स. अब हम अपने सांसों को एक बहुत ही पावरफुल टूल बनाएंगे. क्योंकि हमने अगर इन सांसों पे विजय प्राप्त करनी है तो अपने अंदर के पावर को समझना पड़ेगा. अब आप अपनी सांसों को अपने मुंह से लेंगे और छोड़ेंगे भी मुंह से. जैसे हम सूप पीते हैं वैसे करके सांसों को मुंह से लीजिए. इनहेलेशन भी मुंह से कीजिए और एक्सहेलेशन भी मुंह से ही करेंगे. बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी पॉज के, बिना किसी भी जजमेंट के. सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसें चलेंगी, हमारे मुंह के द्वारा अंदर जाएंगी और हमारे मुंह के द्वारा ही बाहर आएंगी. क्योंकि हमने अभी रिदमिक हीलिंग करनी है. हमने अभी अपने अंदर के जो छुपे हुए दर्द है उनको रिलीज करना है. जो डर है, जो दर्द है, जो ऐसी प्रक्रिया है, उन सभी चीजों को, नेगेटिव फीलिंग्स को अपने अंदर से हटाना है. तो मुंह से सांस लेंगे और मुंह से ही छोड़ेंगे. कम ऑन, जस्ट टेक योर ब्रेथ फ्रॉम योर माउथ एंड अगेन रिलीज इट फ्रॉम माउथ ओनली. Inhale and exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. रुकना नहीं है. Inhale, exhale. डरना नहीं है. Inhale, exhale. Inhale,
exhale, inhale, exhale, अपने अंदर की पावर को फील कीजिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale. Now relax. Take a pause. Take a pause. No judgment. No thinking. No overthinking. Just be yourself. Just be your breath and nothing else. डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो फील होने दीजिए। आंसू अगर आए तो रोकना नहीं है। कोई आपको नहीं देख रहा, कोई आपको यहाँ जज करने के लिए नहीं बैठा, ना ही आप खुद को जज करोगे। Just go with the flow. If there is a pain, feel that pain. You need to feel it. You need to feel it to heal it. Just feel it. रोना आ रहा है रोइए, हंसना आया हंसिए, जो भी करना है कीजिए, but be here, be with me. Just for another 20 minutes, be with me, give me your time, and I completely promise you that you are going to get completely healed. Just take a pause and again we'll do the same exercise. मैं आज आपको खुद से मिलवाऊंगी। बस आप अपने आप को फील कीजिए, अपने अंदर को, अपने अंदर से जो दर्द है उसको बाहर आने दीजिए। कोई क्रोध है, उस क्रोध को आज खुल जाने दीजिए। जो दर्द है उस दर्द को फील कीजिए और उसको बाहर निकालिए। Inhale through your mouth again. Exhale through your mouth. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, करते रहना है। Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Take a pause. शरीर कांप रहा है, कांपने दीजिए। प्यास लग रही है, लगने दीजिए। आंखों से आंसू आ रहे हैं, आने दीजिए। कुछ भी जज नहीं करना है, किसी थॉट के आगे नाम नहीं डालना है, सिर्फ सांस लेना है और सांस छोड़ना है। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। आंखों को बंद रखेंगे। बस आप ये मन में ठान लीजिए कि आज मुझे कंप्लीटली अपने अंदर से खाली करना है। अपने अंदर जो भी दुख है, चाहे वो दुख किसी प्यारे यारे का बिछड़ने का दुख हो, चाहे वो दुख किसी पुरानी बात को याद करके हो, जब आपको किसी ने बहुत चोट पहुंचाई थी, जब आपसे किसी ने बहुत कड़वी बात बोली थी, चाहे वो बात भूलनी हो, उस दर्द को मिटाना हो जो किसी ने आपको हर्ट किया हो, चाहे बचपन में किसी ने आपको मोलेस्ट किया हो, किसी ने अनचाहे आपकी चाहत के विरुद्ध आपको छुआ हो, हर किसी उस भावना को, उस डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए। आज फिर से वो एक्टिविटी करेंगे। इनहेल थ्रू योर माउथ, एक्सहेल थ्रू योर माउथ, फील रिलैक्स्ड। इनहेल थ्रू योर माउथ, exhale through your mouth. Inhale through your mouth. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale.
Exhale. Relax. Take a pause. Give yourself some time. अब आप अपने आप को अपने दिल पे हाथ रखकर बोलिए कि मैं अपने आप को कंप्लीटली हील कर रही हूँ. I am getting healed. My soul is getting healed. बरसों से जो मैंने अपने अंदर दर्द छुपा रखा है, that pain is getting healed. अब आप अपने मनचाहे तरीके से सांस ले सकते हैं. एक गहरी लंबी सांस अपने अंदर भरें. जैसे आप चाहते हैं वैसे भरें. अगर आप नाक से सांस लेना चाहें, नाक से लें, लेकिन छोड़ना अपने मुंह से ही है. गर्मी लग रही हो, पसीने आ रहे हो, आने दें. प्यास लग रही है, आंसू आ रहे हैं, आने दें. थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आने दें. रोकना नहीं है अपने आप को किसी भी तरीके से. अब आप अपने आप को याद दिलवाइए कि आप बचपन में कैसे दिखते थे. अपने बचपन की फोटो को अपने जहन में लाइए. अपने मेंटल बोर्ड पे वो छवि लाइए. The way you used to look when you were a child. We are all child within our heart. एक बचपन में जो हमारे साथ घटनाएं घटी हैं, वो हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, सबसे ज्यादा दुखी करती है. तो हमने अपने आप को उस बचपन के बच्चे को याद दिलवाना है. आप देखिए अपने आप को, उस छोटे से बच्चे को, अपनी छवि को देखिए. अपने आप को देखिए. आप अपने आप का कैसा चेहरा देख पा रहे हैं? क्या वो बच्चा खुश है, स्माइल कर रहा है, या वो बच्चा उदास है, या बच्चे में कोई भी फीलिंग नहीं है, निर्जीव बच्चे की तरह बैठा हुआ है? अपने आप को देखिए. आप क्या हो? आप उस बच्चे को देखिए. आप उस बच्चे को एक समंदर के किनारे बैठे हुआ देखिए, बिल्कुल अकेले. उसके आजू बाजू में कोई भी नहीं है. शायद वो किसी का इंतजार कर रही है या कर रहा है. उस बच्चे से आपने आज बात करनी है, क्योंकि वो बच्चा अपने मन में बहुत सारी पुरानी यादों दबा के बैठा हुआ है. बहुत गहरे उसके अंदर जख्म शायद हैं,
शायद उस बच्चे को बचपन में कंपेयर किया जाता था अपने भाई बहनों से, अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने माँ बाप के साथ। या वो बच्चा कोई खिलौना चाहता था पर उसको वो खिलौना दिया नहीं गया। शायद वो बच्चा कभी पढ़ने का मन ना हो उसका और उसको पढ़ने के लिए जबरदस्ती बोला गया। या उस बच्चे को किसी ने गलत तरीके से टच किया। या बच्चे के जो सबसे करीबी लोग होते हैं, उसकी माँ होती है, उसके पापा होते हैं, उनकी माँ और पापा को किसी ने छीनने की कोशिश की, उसको बिना समझे, बिना किसी विचार किए। क्या ऐसा कुछ है? आप जाइए और उस बच्चे से पूछिए। आप जाइए, उस बच्चे को अपने गोद में लीजिए। उसको स्पर्श कीजिए। टच द चाइल्ड। And as and when you touch that child, she started crying, sobbing, and you have realized there is something in her mind, there is something in her heart जो वो किसी को भी बता नहीं पाया था अभी तक, या किसी को भी बता नहीं पाई थी अभी तक। आप उसको सेफ फील करवाइए। आप उसको बोलिए कि तुम मुझे बता सकती हो। आज मैं तुम्हारा हर एक कष्ट को दूर करने आई हूँ। तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम पूरी तरह से सेफ हो। मैं तुम्हें प्यार करने आया हूँ, प्यार करने आई हूँ। तुम सही थी, तुम हमेशा सही थी। जब तुमने अपनी माँ को पास पाने के लिए जिद करी थी, वो जिद भी सही था। जब तुमने रेजिस्ट किया था किसी और के हाथ को अपने ऊपर आने देने से, वो रेजिस्टेंस भी सही था। अपने खिलौने को खोने के डर से जब तुम उस खिलौने को छुपाना चाहती थी, वो भी सही था। तुम बिल्कुल सही थी। देखिए, आप ऐसा बोलते ही उस बच्चे के चेहरे पे स्माइल आ गई है। उसने आपको टाइट से पकड़ा। She grabbed you, feeling that yes, now there is someone who is listening to me. Now there is someone who is responding to my stimulus. You hug her tight. कस के उनको पकड़िए। उनको बताइए जो हुआ वो गलत था, पर अब सब सही होगा। मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें समझती हूँ। अब कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं ये अश्योर करती हूँ। I assure you, little girl, that now no one in this whole world is going to hurt you. Speak out. Just speak out. बताओ, what are you feeling right now? क्या दर्द है? कहाँ तकलीफ है? तो जैसे ही उस बच्चे ने आपको टाइटली हग किया,
उसकी सारी की सारी एनर्जीज ट्रांसफर हो गई। उसके बिना कहे आप वो सारी बातों को समझ पाए। आपको वो थैंक यू कर रही है कि थैंक यू, आज सही देर सही पर आपको मेरी याद आई और आपने मुझसे बात करी और आपने मेरे अंदर जबान दी। मैं आपको बता पा रही हूँ, मैं आपको अपने दर्द का एहसास करवा पा रही हूँ जो मैं सालों से सहती आ रही हूँ, जिसके कारण मैं किसी से कुछ बात नहीं कर पाती। कोई मुझे पूछता है कि तुम कैसी हो, मैं हंस के जवाब देती हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत तकलीफ होती है। पर मैं एक मुखौटा पहन कर रह रही हूँ। उस मुखौटे को आवाज देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बच्ची आपको आपके कान में ये विस्पर कर रही है। आपने सब कुछ सुना और आपने अब उस बच्चे को अश्योर किया कि नहीं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ या करता हूँ कि अब से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं हर मोमेंट तुम्हारे साथ हूँ। तुम खुलकर अपने तकलीफों को बताओ, या तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कितना प्यार चाहिए, तुम्हें कहाँ से प्यार चाहिए, तुम्हें कौन सी चीज चाहिए, खुलकर बताओ। तुम कब दर्द महसूस कर रही हो उसका खुलकर विश्लेषण करो। चाहे 100 लोग तुम्हारे सामने बैठे हो, फिर भी तुम अपनी बातों को कहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ। अब वो गर्ल या बॉय आपको टाइटली हग कर रहा है, बहुत टाइट, बहुत टाइट। और आप देखो कि वो बच्चा धीरे धीरे से आपके अंदर समाता हुआ। फील करो कि आपके अंदर आपकी आत्मा जैसे आ गई हो। और वो बच्चा अब अपनी खुशी वाला चेहरा आपके अंदर लेके आया है। तो आप भी जरा मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि अब आप समझ सकते हो कि वो बच्चा अब सुरक्षित है, खुश है, क्योंकि उसकी बात सुनी गई है, क्योंकि उसको बताया गया है कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। एक लंबी गहरी सांस अपने अंदर भरो। अब आप अपने आप को एक नए रूप में देखो, एक पावरफुल वंडर पर्सन। अगर आप मेल हो तो अपने आप को एक सुपरमैन की तरह देखो। अगर आप फीमेल हो, आप अपने आप को दुर्गा माता का रूप दे सकते हैं, या वंडर वुमन का रूप दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, क्लियर, बट पावरफुल, वेरी पावरफुल। वो वर्जन आपका जो हर कोई डिसीजन ले सकता है,
जिसे किसी की भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, जो अपने आप को खुश रखने के पूरी तरह से काबिल है, जो खुद से पूरी तरह से प्यार करना जानता है, क्या जानती है, बिना किसी शर्त के। स्टेप इनटू हर नाउ। उस अपने नए शरीर को एम्बॉडी करो, उस पावर को, उस एनर्जी को अपने अंदर फील करो। ब्रीद एज अ सुपरमैन जैसे सांस लेता है, हवा में उड़ता है, वंडर वुमन जैसे उड़ती है, वैसे अपने आप को फील करो। यू हैव गॉट योर विंग्स नाउ। यस, यू आर पावरफुल, you are very powerful. Use your wings. Feel that strength. Just be her. Be him. You are the most powerful creature of this entire world. Say, I choose power. अपने आप को बोलो कि मैं आज पावर को चुनती हूं या चुनता हूं। मैं सभी को माफ करती हूं। मैं खुद को माफ करती हूं। मैं एक नई रूप में अपने आप को स्वीकार करती हूं। हर तरह से completely I am a being, a complete human being, a whole person. I have the power of the entire world. Yes, I am powerful. Yes, I am powerful. Yes, I am powerful. I have all the rights to decide what I want. I have all the rights to decide what I want. I have all the rights to decide what I want. I have the key to happiness. I have the key to happiness. I have the key to happiness. एक गहरी लंबी सांस अपने अंदर करो। उस एनर्जी को अपने अंदर फील करो। Now we will inhale 4 times. We will hold the breath for 4 times. And again we will exhale in 6 counts. Very calmly but powerfully. We are calm yet powerful to be here right now, right here. Inhale, hold, exhale. 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 Take a pause. Now, know
जानिए इस बात को कि आप शक्तिशाली हो, आप पावरफुल हो, आप एक हैप्पी सोल हो। धीरे धीरे करके अपने हाथों और पैरों को हिलाने की कोशिश करें। अपने आप को थैंक यू कहें। मन ही मन अपने आप को पावरफुल समझकर खुद को हीलिंग वाली एनर्जी से एनर्जाइज्ड देखें खुद को, that you are healed, completely healed. अपने बॉडी को महसूस कीजिए, अपने दिल के पास अपने हाथों को लाइए, अपने हाथों को जोड़िए, आपस में रगड़िए, आपस में अपने हाथों को रगड़कर उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। जो पावरफुल ऊर्जा थी वो आपके अंदर है। अब उस पावर को फील कीजिए। और अपने आप को बताइए that yes, now I'm completely healed. Yes, I'm completely healed. My purpose is solved. अपने दोनों हाथ अपनी आंखों के ऊपर रखिए। अपने फोरहेड पे लेके जाइए। अपने सहस्त्र बुद्धि चक्र यानी कि आपके सिर के तालू के ऊपर रखिए अपने हाथों को। अपने सिर के पीछे, अपनी गर्दन के पीछे वाले हिस्से में अब धीरे धीरे सरकाते हुए हाथों को बिना हिलाए अपने गले में लाइए, अपने कंठ पे रखिए, अपने वॉइस बॉक्स में, और फिर से अपने छाती पर हाथों को रखिए, हार्ट में दिल की धड़कन को महसूस करते हुए। आंखें आपकी बंद रहेंगी और मेरे साथ इस बात का उच्चारण कीजिए, आउट लाउड बोलें, सॉरी फॉर द डाउट, forgive the fear, thank you mind for bringing me here, love for my path, peace in my heart, power is within me, and I now manifest. With this, when you are ready, just open your eyes and say thank you to yourself and I love you to yourself, and say that you are so brave. I am proud of you. Take your name, अपना नाम लेके अपने आप को I love you बोलिए, अपने आप को शुक्रिया अदा कीजिए और बोलिए, wow, you are powerful, you are brave, you are supreme, and I love you. I love you so much. अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं जब आप रेडी हो।
Thank you so much, Priya ma'am. Such an amazing session. Thank you so much. Thank you, Aarti ji. Thank you so much. Thank you for coming here. Thank you for Thank you, Priya. Thank you, Priya. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. It was so awesome. Really feel like a new person. Thank you. If you are having this Thank you, feeling that and then our purpose is solved. We just beautiful wanted, session, Priya. Thank you. just Thank wanted you. Thank you, Soumya, awareness so of much. we wanted this only. We know that if it is within us, if we can savor this, you should also. You must also savor this love, this healing energy within you, because we are not the provider. You are the provider for yourself. You are the conscious creator of your life, and you are creating your life with the power of your breath and with the power of your universe. You are your universe. Thank you so much, everyone, for giving us this privilege of having you here for this wonderful breathwork session. Thank you so much. Soumya, you want to say something? Thank you, everyone. Your energies were so clear when you guys were meditating, when you were doing this. Know that everybody, your part of one part of you has healed you. Maybe you will not be aware as of now, but as you go through the day, as you go through your life, you will come back to this moment and you will know that this was a key moment. It has started a chain reaction in your life that will change you forever. Your guys, your energies were so clear at the end of this session. We could all feel it. Thank you so much. Is there anyone who would want to share explicitly what they felt, what happened? Did you feel the release? Anybody who is willing to share their experience, so that if anybody is here going through something, they can get consoled that that is their next step. Anybody, we would be happy to put you on spotlight and bring it to focus. If anybody is willing, of course. If you are willing to share your experience, then please raise your hand so that we can put you in the spotlight. Thank you so much. Bitty, you want to say something? Yeah. Yeah. I just want to say it is so much empowering, so much, मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। और जो छोटे बेबी को हमने अपनी गोद में उठा के प्यार किया ना, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि हम मम्मी हैं और वो बच्चा है, और उसको हम इतना प्यार दुलार ऐसे कर रहे हैं कि, और वो सुबह सुबह के रो रहा है, लाइक मतलब आई हैव नो वर्ड्स। कि मैं गार्डन आ चुकी थी और मैंने लिंक मतलब टाइम बाद में देखा, और मैं जहां थी वहीं पे बेंच पे बैठ गई और इमीडिएटली मैंने मेडिटेशन शुरू कर दी। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि दुनिया में कौन मुझे देख के गया है या नहीं देख के गया, मुझे नहीं पता, सारी दुनिया वॉक कर रही है यहाँ पे, बट आई एम पूरी लॉस्ट हो गई थी। थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू फॉर सच अ पावरफुल मेडिटेशन, थैंक यू। Thank you so much, Bitty. Thank you for voicing it. You have got that power. अभी हमने बोला ना कि हम लोगों को अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए ही हम अपने आप को हील करते हैं, कि wherever we can, we should express ourselves. We must express ourselves. God wants us to do that. Thank you so much for voicing your feelings. Thank you so much, Bitty. This is a beyond loved feeling. Love is something, but this is a beyond love feeling. Thank you so much. Thank you for being here. Thank you for the Thank you session. so- Thank you for the link. Thank you. Thank you so much. Thank you, Shalini ji. Yes, you can just start. हेलो। हाँ प्रिया, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आपने जो मेडिटेशन कराया वो अमेजिंग था, एंड
बहुत सारे इमोशंस निकल कर आए, रोना भी आया, अभी भी आ रहा है। बीच में मुझे हेडेक भी हुआ, फिर वो धीरे से चला गया। और बचपन में पहुंच गई थी बहुत सारी चीजें। वो छोटी वाली शालिनी मुझे चाहिए, एक बार दीप्ति मैम ने भी कई बार कराती है वहां पर MMBG में। एक बार ये इनर चाइल्ड वाला मैम ने कराया था, तब भी वो शालिनी मुझे मिली थी बचपन में, वो चुपचाप बैठी हुई थी। आज आज भी वो चुपचाप ही बैठी हुई थी। आज मैंने उसे फोन में उठाया और बस तभी मुझे आंसू आना शुरू हो गए कि वो, उसको क्या दिक्कत है, उसको क्या तकलीफ है कि वो इतना चुपचाप क्यों रहती है, क्यों नहीं बोलती है। तो पूछे मैंने क्वेश्चंस, और शायद अभी भी चल रहे हैं मेरे माइंड में कि क्या बात है कि क्यों इतना चुप रहती है। कोई बात नहीं, आपका अगर अभी किसी को भी अगर अभी बोलने में तकलीफ हो रही है, जैसे शालिनी जी को थोड़ा सा हो रहा है कि ना वो फीलिंग आ रही है, आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं, है ना। आप मुझे, सौम्या को, हम लोगों में से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं कि हाउ यू फेल्ट, बिकॉज व्हेन यू एक्सप्रेस दैट ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाती है। आप उसको अपने ऊपर से निकाल कर जब आप किसको बता रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो, बिकॉज वी आर ऑल एनर्जीज एट द एंड ऑफ द डे, राइट। वी आर ऑल एनर्जीज. When you express that, it gets impressed in your subconscious mind that yes, I felt this, yani ki I am getting healed. You get this assurance that you are getting healed in this process. Thank you so much, Shalini ji. Thank you so much. Thank you for voicing your feelings. Thank you so much. Love being. लव यू टू। Thank you so much. So thank you so much, everyone. Thank you again from the bottom of our hearts, from my heart, from Soumya's heart, and from the Brain to Body Revolution. Thank you for cheering this revolution. And I am sure that we are going to carry out this. Please reach out to us if you want any of our things, any of your services. किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, लाइफ में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अगर परेशानी हो, आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हील करने की भरपूर तरह से अश्योर करते हैं कि यू विल बी कंप्लीटली हील्ड। सो यस, दिस इज अ होलिस्टिक प्रोग्राम। हम आपके पूरे के पूरे सेक्टर्स में काम करते हैं। Please reach out to us. Maybe you can share your victories. Maybe you can share what you felt. Whatever, whatever. अगर आपको कोई हमें सजेशन भी देना है तो प्लीज वी आर ओपन फॉर दैट. यू कैन ऑलवेज सजेस्ट अस दैट हियर you can improve like this, whatever. Yeah. Thank you so much. To Yeah, thank you to all you people who are fresh here, who are new here, thank you so much for joining, for taking out time to come to you, giving us a go, for coming here, taking out time. Thank you. And to all the people who are with us, who sent out, like especially Namrata ji, thank you so much for amassing people, for giving them these tools. Thank you so much. So this is one tool that we use. People here who are existing people can say this is one of the tool that we start our day with. Just imagine right now, middle of the day, or you're about to go and sleep, but you are in the middle of the day when you're still conscious, you did this and you got this much of change. We start our day with this. So people who are wondering what we do in Mind Gym, this is one of the tool that we use in Mind Gym. We use multiple tools. So this is what we want, because we get a lot of question, what is Mind Gym, and we wanted to explain this as well as give this beautiful breath work a go for all of you. Remember that mouth breathing that Dee made you do, 4-4-4-6, any breathing techniques, please use it for your use. And you can always bring this little child that is in you anytime to play and heal that on your own. Okay, but do the breath work and then do it, then it will be super super powerful. That is what I wanted to add on to what Dee was saying. So please, of course, nothing in your life, nothing in your body, there is nothing there out there that can't be healed or can be reached to its highest potential. Not put barriers. I think Monisha ji wanted Yeah, to. Monisha ji has to share something. So yeah, thank you so much, Monisha ji. Yes. और मन की भी तरह का कुछ शेयर करूँ, मैंने सोचा बाद में मैसेज करके ही बताऊंगी, क्योंकि इतनी डिवाइन फीलिंग है ना, आप इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, पाओगे इस टाइम पे, या आप सिर्फ इसको
फील कर सकते हो। एक्सपीरियंशियल। ये सेशन पे आगे भी होता है कि 50% देता है ये? हम लोग हर शुक्रवार को एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। ब्रेथ वर्क हम लोग आज ही लेकर आए थे, तो आज ही हुआ है। ये वाला सेशन होता जरूर है हर बार 6 से लेकर 7 बजे तक फ्राइडे को, बट ब्रीदिंग के लिए नहीं होता है इस टाइम पे। हम लोग माइंड जिम जब करते हैं सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक, तब हम लोग यही सेशंस करवाते हैं। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को हम लोग उठाते हैं और उस पर काम करते हैं माइंड जिम में। वो सुबह होता है 5 से 6। बट ये तो एक इसका लिंक कहाँ डलता है? ब्रेन टू बॉडी मैंने अब ज्वाइन किया है ना, इसका लिंक तो आप इस हमें डीएम करोगे ना सौम्या को या मुझे, तो आपको मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सौम्या, थैंक यू so much. सुप्रिया, गॉड ब्लेस Thank you so much. Thank you. राइज एंड शाइन। Thank you so much. Thank you so much. आप लोगों की blessings है हमारे साथ, हम बहुत आगे जाएंगे। Thank you. Yeah. Thank you guys. So this Thank you revolution so continues. much. Thank you Thank so you, much, sir. Priya. Thank you, Soumya. Hope to see you guys for next Friday, 6 to 7. Guys, if you can join, nothing like it. This is a free community. We are building a tribe of like-minded people. If you can come, join us, share your stories, share your experiences, share your suggestions. If you want to do something in particular, please do reach out to us and we can host you as well in this platform. So just building a community where we all can grow and thrive and learn from each other. One question to ask: Can we get the meeting, recorded meeting of this session of today? Sure, sir. I will send it across to you. Yeah. This Thank you is so so much. cute. Ma'am is Mohit and Mohit is Shalini. I'm like so confused right now. Yeah. So cute though. So We are one but different. yes, of course. दो जिस्म एक जान. Yeah, true. Okay. Thank you so much, sir, for joining in. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yeah. Yes. Thank you. Have a lovely weekend, guys. Enjoy your weekend, but love yourself because you are the most powerful soul of this entire world. Love you guys. Bye bye. Take care. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Sayonara. Bye. Thank you so much. Thank you, ma'am.